Today all of you are welcome in this session of international business. Today we are going to discuss different issues related to globalization. On one side, there are a lot of people, group of companies and many countries are in favor of globalization, and they feel that globalization is benefit for all. It is good for all society. On the other side, there are some people, different kind of group, they oppose globalization. So we have to discuss different issues, why they oppose globalization. On the other side, the people who are favoring globalization, what they say. Here are two groups. One is favoring globalization. The second group is telling us about different issues, why they are opposing globalization. So we are going to start our discussion or a kind of debate. I request this group to start. In their point of view, what is the basic benefits of globalization? Okay, you can start. So first of all, I would like to say globalization. Yeah. Because we are here to defending globalization. Why we are defending globalization? And everybody knows that globalization is a phenomenon by which the national economies are converted into integrated and independent economies. So this is a phenomenon by which the economy is converted into these independent economies. So first of all, we will put to a benefit of globalization as national trade. The main dimension of the globalization is national trade. And then we discuss the later dimensions of that broader term in different aspects. So as we know that the national trade is increasing day by day. That is possible because of the globalization. Because now the world is becoming global, and everyone can reach the market of every country. Means that due to the decrease in the tariff rates, you can enter in the market of any country. The distance is reduced between the countries and the markets, and you can sell and buy products in different countries. So this, due to this, the trades are increasing day by day, and the main figures of that increasing trade will explain Mr. Asnan after. There are some dimensions of that aspects of foreign trade investment and other expansion. Okay. Sir, Mr. Hezwan said about the decrease in tariff rate. तो आप कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में टैरिफ रेट डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे इशूज है जिसमें आपको एक एग्जांपल करी है कि अगेन वो पीपल जो कि या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि टैरिफ रेट को डिक्रीज करने की बात कर रही है, वो देन अब टैरिफ रेट को इंक्रीज कर रही है. अगर वो सब लोग ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल है. IMF की आज ही का न्यूज़पेपर है, इसमें है कि IMF अगेन आज गवर्नमेंट टू इंक्रीज पावर टैरिफ. क्यों? IMF कौन? हु इज IMF? सर अगर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वो कुछ कंट्रीज हैं जिनके ऊपर जो है वो टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड का वॉल्यूम कम करना चाहते हैं. करंटली उनके वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसए को या बड़ी इकॉनमीज को कुछ थ्रेट्स हो रही हैं या वो कुछ अनसर्टेनिटीज फील कर रहे हैं. उसकी वजह से वो चाहते हैं कि कुछ कंट्रीज को जो है वो बैकअप किया जाए. And now the target is not on the reducing the tariffs; it is to reduce the trade. They don't want it to trade with those countries. This is not a globalization, anti-globalization. So instead of that, we can say they are not trying to reduce the trade. They are trying to control the trade. Yes, sir. At an optimal level. Exactly. इसका मतलब है कि आप भी ये बात को फॉलो करते हैं कि वाकई ग्लोबलाइजेशन की कोई एग्जिस्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस या वर्ल्ड टाइप की जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो ट्राई करती है उसको मेंटेन करने की. इसके लिए इसका मतलब आप हमारी बात से एग्री करेंगे. हमारा ओवरऑल पर्पस ही इस बात को डिस्कस करना है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हर चीज की एडवांटेजेस ही होते हैं. कुछ भी चीज 100% नहीं होती. इतने एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि हर चीज 100% कंप्लीट नहीं है. हर किसी में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. लेकिन आज का जो फिनोमेना है वो सिर्फ इसलिए हम ले रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर है और उसको अडॉप्ट करने में कोई मुजाहिदा नहीं होना चाहिए या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये नहीं कि उसकी प्रॉब्लम्स को छुपा दे रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं है. हर चीज़ से प्रॉब्लम्स हैं. अब वो हाईलाइट करके उसकी वजह से एक अच्छे फिनोमेना को छोड़ दिया जाए, उसके मेरिट्स को छोड़ दिया जाए, ये गलत है. हम सिर्फ उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन में ये बात नहीं होती कि आप टोटली उस बात को इग्नोर कर दो. उसमें अगर वहाँ पे आप वेज रेट की बात करते हैं तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं. वो लोग ये नहीं चाहते कि आप अपनी ट्रेड को ही बंद कर दो, यानी ग्लोबलाइजेशन को ही ट्रेड को सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं. जिस कंट्रीज का आप रेफरेंस दे रही हैं, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं उसको. अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो कंट्रोल कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को भी, वो कंट्रोल कर रहे हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन
अगर आप उनके सिर्फ और ट्रेड इश्यूज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उनके ट्रेड फिगर्स देखते हैं तो आप उनके टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखिए, उनके पास जो फैक्ट्रीज हैं, उनके पास जो मशीनरीज हैं, वो इंपोर्ट्स होके आई हैं यूएसए, मैक्सिको, इन कंट्रीज से, तो वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल आपको हुई पता है। है इस मशीनरी का इफेक्ट, अगर हम लोग इसी उसके इफेक्ट्स हैं बिल्कुल। अगर हम इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देख रहे हैं तो बहुत ही हमारे बेनिफिट के लिए की जाती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी कॉस्ट टेररिज्म है। हमारे जितने भी वेपन्स क्रिएट हो रहे हैं ये हमारे बेनिफिट्स के लिए एक्चुअली फॉर द सेक ऑफ रिसर्च सिक्योरिटी, हम अपने कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, लेकिन उसका मिसयूज इतना क्रिएट किया जा रहा है कि विदाउट एनी रीजन लोगों को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। उसकी एक एग्जांपल हम लोग इस साइड में निकालेंगे। इसका रेफरेंस दिया हुआ था कि इसमें जो है रिसेंटली 12 मुस्लिम्स को अरेस्ट कर लिया गया था। ब्रिटिश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि इन लोगों को विदाउट एनी रीजन एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर करके अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसकी रीजन भी ये है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी क्रिएट हो रही है उसकी वजह से टेररिज्म जो है वो इंक्रीज हो रही है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने मेंशन किया है कि मुस्लिम कम्युनिटी के 12 लोग जो है 12 मुस्लिम जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसमें ग्लोबलाइजेशन का कहां पे पार्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी जो है मशीनरी वाली बात को एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मशीनरी आप कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हुई है, यू नो प्रोडक्शन ओरिएंटेशन होने के साथ साथ जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें हमारे एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है, कम वेज रेट पे की जा रही है, उनसे मैक्सिमम वर्क ले रहे हैं, उनके हेल्थ पे इफेक्ट है। हर ऑर्गेनाइजेशन यूके हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन सबकी सब जो होती है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट बेसिस पे होती है। उन्होंने कम से कम वेज लेनी, उन्होंने से ज्यादा वर्क लेना है। ये बात आप अगर उस पिछले स्नैप पे भी देखना वहां पे क्या आप ये जानना चाहेंगे उनको कम वेज रेट क्यों दिया जा रहा है? उनके अनस्किल्ड लेबर की वजह से। अनस्किल्ड लेबर को कम वेज रेट दिया जा रहा है, जो हाईली स्किल्ड लेबर है उसको हाई से हाई रिवॉर्ड किया जा रहा है, उसको सैलरी पैकेज दे मेरी फैमिली बात की कि कम वेज रेट दिया जा रहा है। आपने एक चीज नोट किया कि पाकिस्तान में इतना ब्रेन ड्रेन क्यों है? लोग यहाँ से अमेरिका, कनाडा क्यों जाते हैं? सिर्फ वेज रेट के लिए जाते हैं। वहाँ पे वेज रेट दिया जा रहा है एज कंपेयर टू एफर्ट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ एफर्ट को कंपेयर किया जा रहा है, आप उनसे वर्क ज्यादा ले रहे हैं, आप उनको उसके वर्क के मुताबिक वेज रेट कम प्रोवाइड लोग यहाँ से वहाँ क्यों जाते हैं? ग्लोबलाइजेशन के बाद इस तरह वहाँ पे एड्स आते हैं। आप कहते हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लोग यहाँ से वहाँ इसलिए जाते हैं उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पुअर हो रही है, उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटीज? इसलिए कि बाहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट हो रही है। आपने वो कहावत सुनी है कैमल्स हेड इन द टेंट? आहिस्ता आहिस्ता वो हमें डोमिनेट करते जा तो रहे ये हैं। आपका पार्ट है कि यू आर नॉट एंटरिंग इन द ग्लोबलाइजेशन। आप अपने लेबर को आप स्किल्ड करें, उसको एजुकेट करें, हमारा पार्ट ये नहीं है, हमारा गेट देयर वेज रेट। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, इसलिए कह रहा था कि यूजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो जो है उसकी वजह से ये टेररिज्म हो रहा है। एक्चुअली ये खुद मेंशन कर रहे हैं कि उसको ऐसे यूज किया जा रहा है जिसकी वजह से टेररिज्म क्रिएट हो रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन को पॉजिटिवली यूज करें तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आप उसको नेगेटिवली यूटिलाइज करेंगे तो आपको बेसिकली तो उसके जो यूज करने वाले हैं उसी का बेस करते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं तो वो नेगेटिव रिजल्ट कैसे देंगे? टेररिज्म इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। टेररिज्म कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? ये से प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि अमेरिका चाहता था he wants to become the supranational power after Russia. He wants to weak Russia. बट रशिया को वीक करने के लिए उन्होंने टेररिज्म को स्टार्ट किया इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। then you can train your or educate your people self globalization also that ग्लोबलाइजेशन पॉपुलर हुआ था 1970 के बाद हुआ था। 1970 से पहले भी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी है जिनमें यही उनका इशू था कि वो ओवरकम करना चाहते थे, तो ग्लोबलाइजेशन को हमने ठहरा सकते हैं 1914 में 1939 बात करते हैं आप रिपीट हमने from one group one person. यू नो कि जो है ऑपरेशन निजात अफगानिस्तान में हुआ था, देन उससे पहले हम लोगों ने जो है ना अपने अफगान भाइयों को सॉरी बलूचिस्तान में हुआ था, हमने अफगान भाइयों को अलाउ किया कि वो लोग यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आके वेपन्स कम्युनिकेशन मतलब सारे के सारे जो मशीनरी उनकी वेपन्स उनके उन्होंने यहाँ पे आए हमारे मुल्क में। उन्होंने ना सिर्फ खुद इस मुल्क में टेररिस्ट क्रिएट किए बल्कि हमारे ही लोगों को आपस में लड़ा दिए। अब बलूचिस्तान वाले ना तो हमारे सुबह में लाहौर और हमारे इस्लामाबाद वालों के खिलाफ है कि उनके सौदे इग्नोर किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम ही खुद उनकी हेल्प कर